Hello everyone, welcome to the Environment and Ecology Current Affairs classes. Today we will discuss few important topics that are in news this week. That is AI in disaster management. Second one is very interesting topic, that is regarding the district cooling systems. Thereafter we will see what is meant by green steel and how it is important, how India is gearing up for production of the green steel. And the last one is Great Nicobar project, which is in news because of the concerns raised by the environment. Moving to our first topic, that is disaster management and paradigm shift. Recently, India has hosted the Global AI Impact Summit in 2026. Recently, it is in news recently, and there we have discussed about using artificial intelligence in disaster management. Let me give you a context. Disaster management in India has shifted from the approach has shifted from, that is, reactive approach to proactive approach. ये reactive approach and proactive approach में difference ये है, earlier government of India or the other institutions used to come to help after the disaster has struck, and that lead to loss of infrastructure, life, and the social fabric of the place. Now, after the enactment of Disaster Management Act 2005, India has shifted towards the proactive approach, wherein there are different processes and ways. The steps involved in the proactive approach to the disaster management are the preparedness, mitigation, relief, and recovery. Now, in the proactive approach, Government of India is preparing for the disasters in advance. Now, AI can play a very important role in preparedness for the disasters. Like, for example, preparedness in the sense, preparedness in the context of early warning system. Early warning systems help to prepare for the disaster. Like some of the tools helpful for predicting the cyclones, like IMD is using advanced Dirac technique, and this is called as ADT technique. Now this technique is satellite based automated technique wherein it can predict the cyclone intensity and can give the alert 96 hours before the cyclone can struck any coast of the India. Now similarly, different other tool, that is Brahma Satark, is used to it is a AI forecasting tool for Brahmaputra basin to predict the floods and reduce the impact of disasters like floods. And similarly, a very cost effective sensor are being used in Himachal Pradesh to detect the landslides 3 hours before there can be a landslide. Now this is the different tools and techniques that using AI, where disaster management or the early warning systems are used, and we are moving towards the proactive approach. Now AI tools are also helping in last mile connectivity. Predicting the disasters beforehand is useful, but it can become useless if we cannot make them reach the last mile or the people on ground. Now these AI tools are helping to reach the people on the ground. जैसे कि for example भारत forecasting system है ना, it gives the hyper local weather at the 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन, कि 6 किलोमीटर के रेडियस में आप जहाँ पे हैं वहाँ से 6 किलोमीटर के रेडियस में क्या वेदर होगा उसकी फोरकास्टिंग आपको दे दी जाएगी. मौसम जीपीटी, इट्स ए चैट AI chatbot where it chats in it have a communication in your local languages. And IIT Bombay has also made a SPADNet है ना, it is a aerial post cyclone damage assessment ताकि रिलीफ जल्दी से जल्दी पहुंचाई जाए. और IIT खड़गपुर has also made a AI mapping of arsenic contamination in Ganga Delta. Now these tools are helping in managing the disasters beforehand. Moving to our next topic, and very interesting topic, that is district cooling. Now ये डिस्ट्रिक्ट कूलिंग है क्या? इट्स नॉट डिस्टिंक्ट, इट इज डिस्ट्रिक्ट. एक सिटी, एक कम्युनिटी जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है ऑफ डिस्ट्रिक्ट कूलिंग. नाउ दिस इज ए काइंड ऑफ कूलिंग एज ए सर्विस. अब ये कूलिंग एज ए सर्विस होती क्या है?
आपने सुना होगा एमजी की विंडसर जो है इट प्रोवाइड्स बैटरी एज ए सर्विस, जहाँ पे आप जितना बैटरी ईवी व्हीकल में जितना यूसेज कर रहे हैं पर किलोमीटर के हिसाब से उसको पे करना होता है। उसी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग में देर इज ए कूलिंग एज ए सर्विस। आप जितना उसको यूज़ कर रहे हैं, जितना कूलिंग सिस्टम के आप यूज़ कर रहे हैं, उतना ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दिस इज अबाउट द डिस्ट्रिक्ट कूलिंग टेक्निक। अब ये होता क्या है, जैसे आपको मैं समझाता हूँ आसान भाषा में। जैसे कि वेयर इफ देर इज अ लार्ज कम्युनिटी लिविंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज इम्प्लीमेंटेड इन गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात। वहाँ पे होता क्या है, जैसे कि आज हर घर में एसी लगानी पड़ रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड राइजिंग टेम्परेचर। इंडिविजुअल एसीज होते हैं घर में, हर रूम में एसीज लगाने होते हैं, तो उसके वजह से स्पेस का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो कि HFCs जिसको कि हमें फेज आउट करना है, वो भी बहुत ज़्यादा एमिट हो रहे हैं। तो उसका एक सोल्यूशन है, यस देर कैन बी नेचुरल सोल्यूशन, ग्रीन बिल्डिंग वगैरह है, बट नाउ दिस डिस्ट्रिक्ट कूलिंग। यहाँ पे क्या होता है, एक जगह पे जैसे कि गिफ्ट सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे ऑफिसेस हैं। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम लगाया जाएगा जहाँ पे वाटर या एयर एकदम चिल होगी, और दैट एयर कूल एयर इज सप्लाइड टू द बिल्डिंग्स थ्रू इंसुलेटेड पाइप्स, और जो पर्टिकुलर एयर वेंट है वहाँ से कूल एयर पास किया जाएगा, और वो उसका पेमेंट उतना ही होगा जितना वो यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, दिस इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। एनर्जी यूटिलाइजेशन विल डिक्रीज बाय अराउंड 40 to 50%। जो नॉर्मल एसी यूज करते हैं घर में, उससे 40 to 50% का यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। यहाँ पे पीक लोड मैनेजमेंट होगा। समर्स में पीक लोड मैनेजमेंट की वजह से ट्रिप हो जाता है, जो हमारे वायर नेटवर्क सिस्टम है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क सिस्टम है, ट्रिप हो जाता है, तो पीक लोड मैनेजमेंट में भी हेल्प होगा। वी कैन यूज द इलेक्ट्रिसिटी इन नाइट टू कूल द वाटर, टू चिल द वाटर, एंड ड्यूरिंग द डे टाइम दैट वाटर कैन बी ट्रांसफर्ड और यूज टू कूल दी बिल्डिंग। इससे पीक मैनेजमेंट भी यूजफुल हो जाएगा। और मैनेजिंग द अर्बन हीट आइलैंड। अब ये अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है, अर्बन हीट आइलैंड इज ए फिनोमिना वेयर द सिटीज आर गेटिंग हीटेड अप, मोर हीटेड अप कंसिडर्ड विद द सराउंडिंग रीजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली है, दिल्ली का टेम्परेचर 1, 2, 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा कंपेयर टू द सराउंडिंग रीजन। इसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। और ये किस लिए हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कंक्रीटाइजेशन ऑफ द सिटीज, डिक्रीज इन द ग्रीनरी और डिफॉरेस्टेशन, एंड डिक्रीज इन द वाटर बॉडीज। इसके वजह से अर्बन हीट आइलैंड हो रहा है, और वहीं पे हीट ट्रैप होकर रहती है। नाउ एसीज आर ऑल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट लाइक सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टू द अर्बन हीट आइलैंड। कैसे, एसीज का जो डायरेक्ट एग्जॉस्ट होता है वो बाहर होता है, वो वहीं पे गर्मी फेंकेगा, उसकी वजह से और ज़्यादा गर्मी बाहर बढ़ जाती है। नाउ दिस द डिस्ट्रिक्ट कूलिंग टेक कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द हीट अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। उसके साथ साथ दिस विल ऑल्सो हेल्प इन अचीविंग आवर क्लाइमेटिक गोल्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग UNFCCC COP26 में इन ग्लासगो समिट इन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज पुट अप दी पंचामृत गोल्स। उसके अंडर में हमें एनर्जी इंटेंसिटी कम करनी है अप टू बाय 45% ऑफ 2005। उसमें ये अगर से हम इसको सेंट्रलाइज्ड और चीज़ें यूज़ करेंगे जहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी रेड्यूसेस बाय इंक्रीजेस बाय 50%, या फिर एनर्जी कंजम्पशन रेड्यूसेस बाय 50%, उससे हम ये गोल्स यूज अचीव कर पाएंगे। उसके साथ साथ हमारे किगाली अमेंडमेंट जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जिसमें जो ओजोन डिप्रेशन सब्सटेंस पे हमें रोक करनी है या फिर उसको रिड्यूस करना है, रिसेंटली उसमें किगाली अमेंडमेंट आया है जहाँ पे वी नीड टू रिड्यूस द कंजम्पशन और एमिशन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और HFCs विच आर मोर पोटेंट ग्लोबल वार्मिंग गैसेस। तो वो किगाली एग्रीमेंट में इंडिया हैज़ टू रिड्यूस इट्स एमिशन बाय 85% बाय 2047 टू द लेवल ऑफ 2028। 2028 में 2024-26 में हमारे जितना एमिशंस हैं HFCs के वो फ्रीज हो जाएंगे। उससे हर 5 साल बाद हमें इंक्रीमेंटल डिक्रीज करना है एमिशंस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2028 से स्टार्ट होगा, 2032 तक 10% डिक्रीज हमें करना है। उसके बाद 2037 तक हमें 20% डिक्रीज करना है। उसके बाद 2042 तक हमें 30% डिक्रीज करना है, एंड बाय 2047
we have to reduce our HFC emission by 85%. So this is very important thing and important target, very ambitious target. वो कैसे होगा? अगर से हम AC का रिक्वायरमेंट और सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कूलिंग हम यूज करेंगे तो उसमें कम कर सकते हैं HFCs का एमिशन। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डिस्ट्रिक्ट वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, और यूपीएससी ऐसे न्यू जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं उससे क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी हो या एपीएससी, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको डायरेक्ट आपको समझना चाहिए कि ये डिस्ट्रिक्ट कूलिंग होता क्या है और ये कैसे एक्ट करता है, और इसकी एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द इंडिविजुअल यूनिट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, अगेन रिलेटेड टू द कार्बन एमिशंस, दैट इज ग्रीन स्टील, है ना। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग ऑफ यूजिंग द ग्रीन स्टील इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। अब इसमें दो सवाल होते हैं कि ये ग्रीन स्टील क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ग्रीन स्टील को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि स्टील कैसे बनाया जाता है। स्टील इज ए कार्बन इंटेंसिव सेक्टर एंड इट इज वन ऑफ द 3 मोस्ट कार्बन एमिटर सेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 टन ऑफ स्टील देर इज अराउंड 2.2 ऑन एवरेज 2.2 टन कार्बन एमिशन पर टन ऑफ स्टील। तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। नाउ द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी। तो ये कैसे होगा? स्टील का प्रोडक्शन तो हम कम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज द स्टील, इट इज बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एवरीथिंग। तो नाउ वी हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रीन स्टील। अब नेचुरल जो जनरली हम देखा जा जो जनरल है जिसमें आयरन ओर यूज होता है और कोकिंग कोल यूज होता है और एनर्जी प्लस एनर्जी यूज होती है बहुत ही ज़्यादा, जिसको हीट करने में फर्नेस में यूज होता है, उसके वजह से कार्बन एमिशन हो रहा है, कोकिंग कोल के वजह से हो रहा है। नाउ ग्रीन स्टील में ये होगा कि आयरन और कोकिंग कोल जो हीट करने के लिए हम यूज करते हैं या कोल यूज किया जाता है, वी कैन यूज द ग्रीन सब्स्टिट्यूट्स लाइक ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी। उसके वजह से क्या होगा, जो कार्बन एमिशंस हैं बोथ फ्रॉम द फर्नेस एज वेल एज द एनर्जी जनरेशन, उसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, द टोटल कार्बन आउटपुट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ स्टील विल रिड्यूस। और इसमें ग्रीन स्टील जनरल एक क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी इफ इट इज लेस देन 1.6 टन टू 2 टन पर टन ऑफ स्टील होगा तो उसको हम ग्रीन स्टील माना जाएगा। बट द चैलेंज लाइज in its production because it is said to be more than the production cost of green steel is around 3 to 5% more than the normal steel, which is very high compared to the competitive market in the world. इसके वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है तो इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और उसमें बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे। इनिशियल कॉस्टिंग जो है ज़्यादा आएगी, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिटरमाइंड टू मूव टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी। तो इसमें स्टील सेक्टर में भी हम काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन यूज द ग्रीन स्टील टू नज फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये चीज़ें हो सकती है और इसके साथ साथ इसका बेनिफिट्स, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमें रिसेंटली यूरोपियन यूनियन में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो लेके आए हैं, CBAM, जो ये चीज़ है, जो इट इज़ a tax, kind of tax by the European Union on the carbon intensive products imported into the European Union. तो अगर से हम ग्रीन स्टील की तरफ मूव करते हैं तो हमारा मार्केट और वहाँ पे जो हमें टैक्स लग रहा है वो भी कम हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, ये भी इसके बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट इसको पुश करेगी। मूविंग फॉरवर्ड टू अवर लास्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, है ना। Now, Great Nicobar project is a overall or integrated development of Andaman and Nicobar Islands conceptualized by the नीति आयोग। इसमें recently National Green Tribunal, that is NGT, has given a approval citing that it's very strategically very important project given it is ecologically sustainable। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, पहले हम ग्रेट निकोबार आइलैंड निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में तो देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि एनजीटी क्या है। एनजीटी इज एपेक्स बॉडी, इज ए जुडिशियल बॉडी, है ना, वेर इन देर आर जजेस एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो काम करेंगे केसेस रिजॉल्व करने के लिए जो कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट करते हैं।
फास्ट ट्रैक करने के लिए केसेस इसको 2010 में बनाया गया है। दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी लुकिंग आफ्टर द एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया। नाउ मूविंग टू द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। पहले तो ये बनाया जा रहा है हमारे ग्रेट निकोबार में, जो कि लास्ट आइलैंड पड़ता है निकोबार आइलैंड में। वहाँ पे इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज द पोर्ट, मेगा पोर्ट है ना, विच कैन बी यूज्ड फॉर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ट्रांसशिपमेंट, अब इसमें ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, देखिए मैं आपको इसमें समझाता हूँ। एक शिप होती है जो कि उसका डेप्थ बहुत ज़्यादा होता है, उसको ड्राफ्ट बोलते हैं, उसको कम से कम 15 से 18 मीटर का डेप्थ चाहिए, है ना। इंडिया में वैसे पोर्ट बहुत लिमिटेड हैं बिकॉज ऑफ द एमर्जिंग कोस्ट, एमर्जिंग ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे नेचुरल पोर्ट हमारे डीप पोर्ट नहीं बन पाते हैं, तो इंडिया यूजेस दिस डीप पोर्ट्स इन सिंगापुर एंड कोलंबो, जहाँ पे बड़े बड़े शिप्स आएंगे और वहाँ पे रुकेंगे। वहाँ से जो इंडिया के शिपमेंट्स हैं, जो कंटेनर्स हैं, वहाँ पे अनलोड किया जाएगा और उनमें लोड भी किया जाएगा, और छोटे शिप्स द्वारा वो इंडिया के पोर्ट्स पे आएंगे, फिर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दिस इज अबाउट ट्रांसशिपमेंट। नाउ इंडिया प्लान्स टू डेवलप a mega port here which can become a hub of transshipment across the region। और इंडिया से इसमें यह हेल्प होगा कि इंडिया का जो कॉस्टिंग है ट्रांसशिपमेंट में ये कम हो जाएगा। उसके साथ साथ जो दूसरा प्रोजेक्ट रहेगा दैट इज पावर प्लांट टू सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी फॉर दिस डेवलपमेंट। देन उसके बाद में यहाँ पे होगा डुअल यूज एयरपोर्ट फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री यूज। उसके साथ साथ उनको सपोर्ट करने के लिए एक ग्रीन फील्ड सिटी होगी विच कैन सपोर्ट अराउंड 3 लाख रेसिडेंट। दिस इज द प्रोजेक्ट conceptualized by the नीति आयोग and implemented by अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, दिस ऑफ 72,000 crore प्रोजेक्ट। नाउ द एनवायरमेंटलिस्ट आर अपोजिंग दिस प्रोजेक्ट ऑन मल्टीपल ग्राउंड्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द लॉस ऑफ forest, around 1 million trees needs to be cut, and these trees are this region has this equatorial climate, dense forest which is very important for sustaining the ecology and ecosystem of the region। उसके साथ साथ वहाँ पे ट्राइब्स भी हैं, वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे ये बन रहा है गोलेथिया बे में, इट इज़ अ रीजन ऑफ हैचिंग ऑफ दिस लेदरबैक टर्टल्स, उसके वजह से मल्टीपल इश्यूज हैं। लेकिन अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर से देखेंगे तो यूपीएससी इस न्यूज़ को ये तो मेंस का पर्सपेक्टिव हो गया कि व्हाट इज द इश्यूज एंड चैलेंजेस इन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट वगैरह। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर से हम देखेंगे तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार पे कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछते आया हुआ है यूपीएससी एपीएससी। इसमें इसके जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जो कि कुछ फैक्ट्स हैं, हमें उसमें देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, नॉर्थ में है अंडमान और उसके बाद में है निकोबार। ये प्रोजेक्ट तो निकोबार में है। हम देखते हैं ये जो अंडमान है नदर्न साइड में, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ आइलैंड, जैसे नॉर्थ अंडमान, ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा मिडिल अंडमान, देन सदर्न अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ये 4 अलग अलग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। और द कैपिटल सिटी दैट इज पोर्ट ब्लेयर ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज लोकेटेड ऑन द सदर्न अंडमान। ये चीजें हैं। नाउ देर आर सम वाटर बॉडीज वी नीड टू रिमेंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोको चैनल यहाँ पे आता है विच सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम द कोको आइलैंड्स ऑफ म्यांमार। देन सेकेंड वाटर बॉडीज, इंपॉर्टेंट बॉडीज, डंकन पैसेज विच इज अराउंड 50 किलोमीटर्स ऑफ विड्थ विच सेपरेट्स द 3 ग्रुप्स, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। देन उसके बाद में आता है नेक्स्ट वाटर बॉडी इज 10 डिग्री चैनल विच सेपरेट्स अंडमान आइलैंड्स फ्रॉम द निकोबार आइलैंड। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें few other facts is नारकोडाम आइलैंड which is located in the north east of the North Andaman Island which is a extinct volcano। ठीक है, उसके साथ साथ there is also a active volcano called Barren Island which is east of the Middle Andaman। ठीक है, उसके साथ साथ हम अगर से मूव करेंगे towards the निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं निकोबार आइलैंड इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। लिटिल अंडमान, यहाँ पे जो मेजर चीजें जो हो रही है इट इज इन दी निकोबार आइलैंड विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, है ना। सदर्न मोस्ट पॉइंट दिस इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड ऑन साउथ निकोबार, द सदर्न ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये वाली चीज है, ये फैक्ट इसमें रिव्यू करेंगे। नाउ एनजीटी हैज सेड
इट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है ग्रेट निकोबार या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का? इट इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू द मलाक्का स्ट्रेट। दिस island is located very close to the Malacca Strait. And what is this Malacca Strait? Malacca Strait is a water body between the Indonesia and Malaysian Peninsula. तो वहाँ पे एक 800 से 900 किलोमीटर का वाटर बॉडी है जहाँ से वर्ल्ड का 40 to 50% ट्रेड पास होता है। एंड इट इज ऑल्सो एन एक्सेस पॉइंट बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। इट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। यहाँ से सारे यूएस के, चाइना के और जितने भी वर्ल्ड पावर्स के मिलिट्री कैरियर्स होंगे वो यहीं से पास होते हैं, ट्रेड यहीं से पास होता है। इट इज़ मेजर सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। निकोबार आइलैंड से इट इज़ जस्ट 150 किलोमीटर्स फ्रॉम और 150 किलोमीटर्स फ्रॉम दी निकोबार आइलैंड। और वहाँ से जो इंडोनेशिया है, सुमात्रा आइलैंड भी अराउंड 70 to 90 किलोमीटर्स है। तो ये वहाँ पे इट एक्ट एज ए आई ऑन दी Malacca Strait. It's very strategic location. उसके साथ साथ now what are the issues because of this Great Nicobar project? Ecological concerns are loss of biodiversity, like जैसे कि for example felling of 1 million trees, destruction of Galathea Bay nesting sites of leatherback turtles and the birds. उसके साथ साथ geologically it is very sensitive. It sits on kind of ring of fire जहाँ पे subduction of boundaries हैं। यहाँ पे continuously earthquakes और volcanism हो सकता है। earthquakes यहाँ पे होते हैं। तो it is very sensitive region, geologically sensitive region, ये भी एक issue है। उसके साथ साथ it is home to the ancient और very important tribes। यहाँ पे 6 tribes हैं, उनके 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं इन ट्राइब्स को। एक है नेग्रिटोस एंड मंगोलाइट्स जो निकोबार आइलैंड्स में रहते हैं, दैट आर इन द ग्रुप ऑफ मंगोलाइट्स, है ना, जैसे कि निकोबारीज होते हैं वहाँ पे। उसके साथ साथ अंडमान पे भी इम्पैक्ट कर सकता है। वहाँ पे 4 ट्राइब्स हैं, उसमें से एक सेंटेनलीज हैं जो कि विच आर अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स। ये सारे जरावाज हैं, ओंगे हैं, दिस आर द डिफरेंट ट्राइब्स, है ना, इनहेबिटेड इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इनसे अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टूरिज्म इकोनॉमी अगर से बढ़ेगी तो यहाँ कॉन्टैक्ट में आएंगे, दैट विल लीड टू स्प्रेड ऑफ डिसीजेस एंड लॉस ऑफ द ट्राइब्स, अलॉन्ग विद देम लॉस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द ट्राइब्स। तो ये सारे इश्यूज हैं, इसीलिए कन्वर्जेशनिस्ट जो हैं इसमें अपोज कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं निकोबारीज के साथ साथ में शॉम्पेन भी हैं विच आर डिक्लेयर्ड एज पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। उनका एक्सपोजर अगर से हो जाएगा तो उनको इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्प्रेड ऑफ डिसीजेस एंड लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लैंड एंड कल्चरल इश्यूज। तो दिस इज द थिंग अबाउट द ग्रेट निकोबारीज प्रोजेक्ट। नाउ दिस अगेन राइजेस द क्वेश्चन ऑफ द debate between development versus environment. Again we need to balance this with respect to sustainable development regarding the growth of India as well as protecting the culture as well as the ecology of the region. Thank you.